Good morning, students. So, beta, today we are going to attempt our next problem from the sheet. That is question number 15. Okay, and all of you tried it very well in the last assignment, and you know that what job we have to perform in this problem. So, all of you know it was a very simple problem in which we have to add the two time period, and we tried many problems like this before also. Okay, so children, in this problem, what is told that you have to take two time periods in form of the object of class adder. Okay, and in this class adder, children, we have only one data member, a array. Okay, na a is a single dimension array which is used to hold two elements which are hours and minute. So children, here the logic starts of the problem. Okay, that you have to input two values, hours and minute, within an array, that is a. तो यहीं पे हमें पहले सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोग एक एरे में आर मिनट की एंट्री लेंगे। तो बहुत ईजी है, यू नो दैट इन द एरे वी हैव टू स्टोर टू वैल्यूज। ओके, आवर्स एंड मिनट, व्हाट इट मीन्स कि द साइज ऑफ द एरे शुड बी टू। ओके, मीन्स टू एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन दिस एरे। ए जीरो में हम लोग आवर्स स्टोर कर लेंगे और ए वन में मिनट स्टोर कर लेंगे। आफ्टर दैट चिल्ड्रेन सी दैट फोर मेंबर मेथड्स आर ऑल्सो गिवन, which are adder, void read time, void add time, and void disp time. Okay, so how we are going to perform the job, just look at the sheet now. Okay, so here children we have the answer. See, in the class adder, one data member is declared as a array which is a single dimension array. After that we move to the next part which is very important, that is the constructor of the class. Okay, adder. So now look at the first line, a equal to new int 2. समझ में आ गया होगा है ना कि that array has been declared before at the beginning of the class, and now we are allocating the memory for that array, and then we will initialize both the array to 0. Okay, how? Because in the problem it is told that constructor to assign 0 to the array element. Okay, so we are initializing both the indexes of that array with 0, a0 equal to 0 and a1 equal to 0. Then the next method is given as void read time. To input the element of the array means children, we have to input the hours and minute. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ की एंट्री ले लेंगे यूज़र से। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वॉइड ऐड टाइम। ये कैसे काम करेगा अभी हम लोग देखेंगे। और फिर इसके बाद आप हम लोग चलेंगे अपनी नेक्स्ट सीट पे, ठीक है, और वहाँ पे क्या बोला गया है ज़रा देखते हैं। Okay children, so here now look, the fourth method is given void disp time which prints the hours and minute, and we can see that for the hours children we are printing a0 and for minute we are printing a1. ओके, और फिर हमारा मेन मेथड आ गया। तो मेन में पता है आपको क्या करना है, दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे पहले हमने क्या बोला, एडर x इक्वल टू न्यू एडर। तो क्या होगा, एक x नाम का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और x में मेरे पास दो वैल्यू होंगी, कौन कौन सी, एक a0 और एक a1, ठीक। ऐसे ही हमने बोला एडर y इक्वल टू न्यू एडर, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा आपके पास y के नाम से, और इसके पास भी एक एरे होगा a नाम से, दो पार्ट में डिवाइड होगा, 0 एंड 1। और फिर इसके बाद एडर s इक्वल टू न्यू एडर, वी विल क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट, ठीक है, s, and it is also having an array with named a having two indexes 0 and 1. And after that children see what am I saying, that x dot read time, ठीक है। तो यानी ये जो पहला मेथड था आपका रीड टाइम, विच विल टेक द एंट्री फ्रॉम द यूज़र फॉर a0 एंड a1, ठीक है। तो हम यूज़र से a0 और a1 की एंट्री यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। सपोज बेटा मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया 5 आवर्स एंड 45 मिनट, ठीक है। इसके बाद फिर हमने कहा y डॉट रीड टाइम, तो अब वही रीड टाइम वाला जो सेम मेथड है दैट विल रन फॉर y ऑल्सो, और y के लिए सपोज आपने इनपुट कर दिया 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स, ठीक है। तो ऐसे बेटा मैंने यहाँ पे दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए और दोनों में यूज़र से आवर्स एंड मिनट्स की एंट्री ले ली, ठीक है। इसके बाद क्या करना है बेटा, मुझे इन दोनों का सम निकालना है, ठीक है। और सम निकालने के लिए जो मुझको यहाँ पे
मेथड प्रोवाइड किया गया था वो क्या था, void add time, adder x comma adder y, mean children we have to pass two object and see what is told in the problem कि adds the time of the two parameterized objects x and y and stores the sum in the current calling object। ठीक है, यानी कि इसमें हमें बेटा दो ऑब्जेक्ट पास करने हैं एज ए पैरामीटर, और फिर इसके बाद इनका जो सम आएगा वो करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट में, यानी कि जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट होगा उसमें इन दोनों का सम स्टोर करना है। तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिए क्या लिखा है मैंने, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा प्रोग्राम की। ठीक है, एस डॉट एड टाइम एक्स वाई, एस डॉट एड टाइम मीन्स बेटा वी आर मेकिंग द एस एस करेंट ऑब्जेक्ट, और इसमें हम एक्स एंड वाई दोनों को पास कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो एक्स एंड वाई है दे विल रीच टू द मेन मेथड दैट इज void add टाइम। ठीक है ना, void add टाइम में हमारे एक्स और वाई यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और अब इसके बाद इस फंक्शन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या बोला कि ए जीरो इक्वल टू एक्स डॉट ए जीरो एंड वाई डॉट ए जीरो, यानी कि जो एक्स का ए जीरो है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का ए जीरो, यहाँ की वैल्यू बेटा कितनी है 5 है, और इसके बाद फिर y का ए जीरो। ठीक है, y के ए जीरो पे कौन सी वैल्यू है बेटा 10 है, तो 5 + 10 a डॉट एक्स जीरो एंड y डॉट ए जीरो। ठीक है, x डॉट ए जीरो एंड y डॉट ए जीरो, इन दोनों को हमने ऐड किया, 10 + 5 आंसर आ गया, और ये कहाँ स्टोर हो जाएगा बेटा s के ए जीरो में, तो आंसर विल बी 15। ठीक है कि नहीं, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो फर्स्ट वाला ए जीरो है इसके पहले किसी ऑब्जेक्ट का नेम स्पेसिफाइड नहीं है। क्लियर है, तो आप समझते हो कि ये फिर करंट ऑब्जेक्ट का होगा, और करंट ऑब्जेक्ट कौन है मेरा इस समय एस है। ठीक है, इन द सेम वे इन द नेक्स्ट लाइन सी चिल्ड्रन व्हाट इज टोल्ड ए वन इक्वल टू एक्स डॉट ए वन प्लस वाई डॉट ए वन, एक्स का ए वन और वाई का ए वन इनको भी ऐड कर लीजिए, तो 40 + 45 कितना हो गया 85 हो गया। ठीक है, और ये कहाँ स्टोर हो गया ए वन में करंट ऑब्जेक्ट के। तो ये देखिए बेटा, ये जो थर्ड ऑब्जेक्ट था एस, इसमें दोनों के आवर्स एंड मिनट ऐड होके आ गए हैं, ए जीरो ऐड होके इधर ए जीरो में, और ए वन ऐड होके इधर ए वन में। तो यानी क्या आंसर आ गया 15 आवर्स एंड 85 मिनट्स। तो आपको पता है कि आंसर तो करेक्ट है, बट करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो मिनट्स हैं वो चेक करने पड़ेंगे कि इफ़ द मिनट्स हैव एक्सीडेड देन 60, तो यहाँ चेक कर लेते हैं। इफ़ ए वन ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कि क्या ए वन की वैल्यू 60 से ज़्यादा है, चेक करिए। यस, 85 इज़ ग्रेटर देन 60। तो अब एक काम करिए, ए वन इक्वल टू ए वन माइनस 60, ए वन में से 60 माइनस कर दीजिए, यानी 85 में 60 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 25। ठीक है ना, और इसके बाद क्या बोला, ए जीरो इक्वल टू ए जीरो प्लस वन, और आर्स को एक बढ़ा दीजिए, तो आर जो 15 था वो 16 हो गया, और मिनट कितने हो गए 25। ठीक, तो ऐसे बेटा मेरा आंसर आ गया 16 आवर एंड 25 मिनट। ठीक है ना, 16 आवर एंड 25 मिनट विल बी द आंसर। एंड नाउ चिल्ड्रन वी हैव टू प्रिंट ऑल द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन। तो ये काम कैसे किया हमने, यहाँ पे प्रिंट वाला फंक्शन है मेरे पास डिस्प टाइम, तो मैंने x डॉट डिस्प टाइम कॉल कर लिया, ये क्या प्रिंट कर देगा मेरे लिए 5 आवर्स एंड 45 मिनट। ठीक है, ये देखिए आ जाएगा यहाँ पे 5 आवर्स एंड 45 मिनट, ये वैल्यू हो गई किसकी, ए की, सॉरी पहला जो ऑब्जेक्ट है x उसकी। y डॉट डिस्प टाइम, y का टाइम प्रिंट हो जाएगा 10 एंड 40। ठीक है, ये वैल्यू हो गई y की, और फिर लास्ट में मैंने बोला s डॉट डिस्प टाइम, तो इट विल प्रिंट द फाइनल आंसर दैट इज 16 आवर एंड 25 मिनट। ठीक, तो ऐसे बेटा हमारे ये तीनों यहाँ पे आंसर्स क्लियरली प्रिंट हो जाएंगे। ओके, और प्रोग्राम आपका ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था, और ये बोर्ड्स में अपेयर हुआ है 2017 में। ठीक है, ऐसे बेटा बस अब हम लोग एक दो प्रॉब्लम और करेंगे और आपका ये टॉपिक फिर ओवर हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू द रिकर्सन। ओके, थैंक यू बेटा।